learners, today we are going to start with the first chapter of computer, that is classification of computer. So in this chapter I will tell you about the different types of computer and I will classify all the computer. What is computer? It's a smart machine. You have studied in our previous classes, right? And it is used, what it's do different tasks according to the choices that we give it. So let's study about, first I will introduce about computer. It can be classified into different categories based upon the working. उसकी working पे based, working principles क्या है, क्या उसका purpose और क्या उसकी data handling है, ये सब इन चीजों पे based है. Right now classification of computer based on data handling and working principle. तो इस चैप्टर में सबसे पहले टॉपिक मैं आपको क्या बताऊंगी कि क्या उसकी डाटा हैंडलिंग और वर्किंग प्रिंसिपल पे किस बेसिस पे हमने कंप्यूटर को क्लासिफाई कराए. तो हमने कितने टाइप्स में कराए? 3 टाइप्स में कराए. व्हाट आर दीज 3 टाइप्स? वी हैव एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर, right? So these 3 types of computer that I have classified on the basis of data handling and their working principle. So first is your analog computer. It works on continuously variable data. किस पे काम करता है? Continuously जो variable data होता है ना, उस पे काम करता है, right? And they operate on numbers पे operate करता है, which are represented directly by measurable quantities. जैसे voltage हो गया आपका, rotation of gears हो गया, and they also are used to stimulate what? Physical process such as motion of aircraft through the air. और जो एनालॉग कंप्यूटर है, व्हाट दे आर? दे प्रोड्यूस क्विक रिजल्ट्स. दे आर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. ठीक है, ये आपको तो एकदम से रिजल्ट देते हैं और उनको हम स्पेशल पर्पस रिजल्ट कंप्यूटर्स भी कहते हैं. स्पीडोमीटर जो कार और बाइक में होते हैं आपके, वो भी क्या है? वो आपके किसके एग्जाम्पल है? आपके एनालॉग कंप्यूटर के. सो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू, नेम द डिवाइस which are in the form of analog computer. So that is your speedometer that we use in car or bike. Now we have digital computer. What it's present, जो digital computer होता है वो क्या present करता है? Information by numerical data. मतलब binary form में होता है, binary number system के form में होता है, जिनको आप easily understand कर सकते हो, right? जैसे आपका 0 और 1 हो गया, right? So these computer perform calculation, ये calculation perform करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और किस पे करते हैं? बाइनरीज नंबर पे. नेक्स्ट वी हैव ENIAC, right? What it is electronical numerical integrator and computer which is introduced in Fab 1946. ये पहला सक्सेसफुल आपका डिजिटल कंप्यूटर है. So this you have to keep in mind. You should know its full form also and what it is the first digital computer. Next we have hybrid computer. What are hybrid computer? These are the computer system जिसमें दोनों चीज होती है, एनालॉग भी होता है और डिजिटल डिवाइस भी होती है, राइट? सो जो दोनों की जो प्रॉपर्टीज है उनको हम एट अ ग्रेट एडवांटेज यूज करके अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं. सो इन हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग पार्ट प्रोसेस एनालॉग डाटा. देखो जो एनालॉग पार्ट होगा वो एनालॉग डाटा को प्रोसेस करेगा और जो डिजिटल पार्ट होगा वो आपको रिजल्ट देगा किसका? जो गिवन एनालॉग पार्ट. जिसे वेदर फोरकास्टिंग हम करते हैं या फिर कोई डिफेंस रिसर्च होता है, वो किसके थ्रू होता है? आपके हाइब्रिड कंप्यूटर्स के थ्रू होता है. नेक्स्ट वी हैव बेस्ड ऑन देयर यूसेज. जैसे मैंने आपको बताया डाटा हैंडलिंग के बेसिस पे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था, एनालॉग, हाइब्रिड एंड डिजिटल. नाउ एंड नेक्स्ट टाइप इज ऑफ बेस्ड ऑन देयर यूसेज. यूसेज के बेस पे हमने 2 टाइप्स पे इसको डिवाइड करा है. व्हाट आर दीज? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर. इफ वी टॉक अबाउट स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, वो किस टाइप के कंप्यूटर होते हैं? जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं, राइट, फॉर पर्टिकुलर टास्क. So the instruction needed by these computer, they are permanently stored into the internal memory so that they can perform that particular task on a single command. कि कोई भी एक particular task को एक single command पे वो कर सकते हैं, right? Next is general purpose computer. They are designed how? To meet the need of different applications. We do many tasks with the help of general purpose computer. आप अलग अलग तरीके के टास्क कर सकते हो जनरल कंप्यूटर के थ्रू. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेबिलिटीज. अगर हम साइज और कैपेबिलिटीज की बात करें, सो वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, राइट?
सो कौन कौन से होते हैं? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर, राइट? सो फर्स्ट इज माइक्रो कंप्यूटर, सबसे स्मॉलेस्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है, राइट? They were introduced in early 70s. They have less memory and less storing space. Memory भी कम होती है और जो storing space होती है ना वो भी कम होती है, right? So microcomputers have microprocessor as central processing unit, जिसको हम computer of a chip कहते हैं, which is designed for, इसको किसके लिए डिजाइन करा जाता है? It is designed for individual usage. जैसे आपका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, पाम टॉप हो गया, किसके एग्जाम्पल है? इट्स एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर. Then next type of computer is mini computer. It is powerful than micro computer. थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है आपके माइक्रो कंप्यूटर से और साइज जो होता है इसका मीडियम साइज का होता है. इट्स अ मीडियम इन साइज एंड इट इज डिजाइन टू सर्व मल्टीपल यूजर एट द टाइम. एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर्स जो है इस पे काम कर सकते हैं, राइट? दीज कंप्यूटर आर वर्सेटाइल एंड मिनी कंप्यूटर हैव हायर स्टोरेज कैपेसिटी एंड फास्ट स्पीड. इसकी जो कैपेसिटी है स्टोर करने की चीजों को वो ज्यादा है और जो स्पीड है वो भी क्या है? फास्ट है. देन नेक्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मेन फ्रेम कंप्यूटर. सो इट हैज लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी और जो इसकी स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा हाई है. These computers are used in large organization, companies and factories. They can allow 150 to 170 user to work on a single processor. मतलब एक 150 से लेकर 170 जो आपके यूजर है एक सिंगल प्रोसेसर पे काम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज जो इसकी स्पीड है वो हम उसको किसमें मेजर करते हैं? नैनो सेकेंड में, राइट? नेक्स्ट इज सुपर कंप्यूटर विच हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड एक्सट्रीमली हाई स्पीड. इनका जो यूज होता है ना वो बड़े बड़े जितने भी न्यूमेरिकल आपके ऑपरेशंस होते हैं या प्रॉब्लम्स होती है, कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम हो गई, इंजीनियरिंग वाली हो गई, वेदर फोरकास्टिंग हो गई या कोई डिफेंस रिसर्च रिलेटेड हो गई, वो सब हम किससे करते हैं? सुपर कंप्यूटर से, राइट? एंड इट इज मेजर्ड इन बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, right? So this was all in this chapter. Hope you understood all the types of computer that I have told you. Now we will meet in the next class. Thank you for learning with me. Keep enjoying.